ویلکم بیک. یہاں بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ابنائے ہرمز کھولنے اور ڈیل کے لیے آج رات تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو جائے گی. خون ریزی، بدعنوانی اور اموات کی 47 سالہ تاریخ بالآخر ختم ہونے جا رہی ہے. ایران کو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا، آج رات فیصلہ کن ہوگی، مٹنے والی تہذیب کبھی واپس نہیں آئے گی. صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ایسا ہو، لیکن غالباً ایسا ہو جائے گا. ہم نے مکمل رجیم تبدیل کر دی ہے. 47 سالہ بھتہ خوری، کرپشن اور موت کے دور کا خاتمہ ہوگا. ایران میں مختلف ذہین کم شدت پسند ذہن حکمرانی کریں گے. دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کا اہم موڑ آج رات سب معلوم ہو جائے گا. ایران کے عظیم عوام پر خدا کی رحمت ہو. تو ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ 1,40,00,000 سے زائد قابل فخر ایرانی وطن کے دفاع میں رضاکارانہ طور پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہونے کا اعلان کر چکے ہیں. ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ میں خود بھی ایران کے لیے قربانی دینے والوں میں شامل ہوں اور رہوں گا. ایران نے عارضی جنگ بندی مسترد کرتے ہوئے اپنے مطالبات پیش کر دیے. ایران نے عارضی جنگ بندی مسترد کرتے ہوئے تنازع کا مستقل خاتمہ، پابندیوں کا خاتمہ اور اسرائیلی اور امریکی حملوں سے ہوئے نقصانات کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تو دوسری جانب ایران نے امریکی تجاویز پر اپنا رد عمل پاکستان کو بھجوا دیا ہے اور سینئر ایرانی عہدیدار نے پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز موصول ہونے کی تصدیق بھی کر دی ہے. تم کتنے خامنائی مارو گے، ہر گھر سے خامنائی نکلے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو سنگین دھمکیاں اور ڈیڈ لائن کے باوجود ایرانی عوام ڈٹ گئے. ایران کے پل، بجلی نظام اور سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے ڈیڈ لائن مل گئی. اصفہان کے پل سفید پر لاکھوں ایرانی شہریوں نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا ڈالی. ٹرمپ کی جانب سے حملوں کی دھمکیاں. ایرانی شہریوں نے کازرون پاور پلانٹ کے گرد بھی انسانی ڈھال بنا لی. ایرانی قوم نے اسرائیل و امریکہ کی دھمکیاں رد کر دیں. ایران جنگ کے فوجی مقاصد مکمل ہو چکے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن تک ایران جنگ بندی کے بارے میں جواب دے سکتا ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایران دنیا کو زیادہ سے زیادہ معاشی تکلیف دینا چاہتا ہے. اگر ایران معاشی تکلیف چاہتا ہے تو امریکہ زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. امریکی نائب صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران کے مذاکرات کار نہ پہلے مذاکرات میں تیز تھے نہ اب ہیں، ثالثوں کے ذریعے سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں. اندازہ ہے کہ پیغامات ایران میں ایک سے دوسرے تک پہنچنے میں وقت لیتے ہیں. جے ڈی وینس نے کہا کہ جنگ بندی پر آج رات 8 بجے سے پہلے ایران کا جواب مل جائے گا. چاہتے ہیں کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے. خواہش ہے کہ ایران سے مثبت جواب ملے. ایران کا جواب مثبت نہ ہوا تو امریکہ اور اتحادی اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں. کا وقت ختم ہو چکا ہے. امریکہ سرخ لکیر عبور کرتا ہے تو رد عمل خطے سے باہر ہوگا. امریکہ اور اس کے شراکت داروں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے. ایران کے پاس زرعن انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل کو دو ٹوک پیغام. کہا امریکہ اور اس کے اتحادی برسوں خطے کے تیل اور گیس سے محروم رہیں گے. امریکہ کے علاقائی شراکت داروں کو جان لینا چاہیے کہ ہم نے ہمسائیگی کی خاطر تحمل کا مظاہرہ کیا. امریکہ کے احمق رہنماؤں نے اپنے تمام مفادات یہودیوں کے قدموں پر قربان کر دیے. امریکی رہنما نہیں جانتے کہ ان کے کتنے بڑے اثاثے ہماری رینج میں ہیں. خلیجی ممالک پر نئے میزائل اور ڈرون حملے. بحرین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور کویت میں ہائی الرٹ کر دیا گیا. بحرین کی وزارت داخلہ نے نئے حملے کی خدشے پر سائرن بجا دیے. شہریوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی. تو متحدہ عرب امارات کے وزارت دفاع نے بھی تصدیق کی ہے کہ فضائی دفاعی نظام ایران سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو فضا میں تباہ کیا گیا. ذرائع کے حوالے سے خبر ایجنسی کا بتانا ہے کہ سعودی عرب کے شہر جبیل کے صنعتی علاقے میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد تنصیب میں آگ بھڑک اٹھی. سعودی وزارت دفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشرقی علاقے کی جانب سے آنے والے 7 بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا گیا. ان کے ملبے سے توانائی تنصیبات کو نقصان پہنچا. تو کویت میں علی السالم فضائی اڈے پر ایرانی ڈرون حملے میں 15 امریکی اہلکار زخمی ہوئے، جس کی امریکی عہدیداروں نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں تصدیق کر دی.
पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम हमेशा अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ, जिसमें खत्ते में जारी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का इआदा किया और अल जुबैल ऑयल फैसिलिटी पर हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सऊदी क़यादत और अवाम ने भी हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत की तहम्मुल और दानिशमंदी को सराहते हुए अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। और अब आपको बताएंगे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, जिसमें कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादर वतन के दिफा में जान कुर्बान करने वाले शहदा और मासूम शहरियों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। फोरम ने शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद हैं। फोरम ने मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत, ऑपरेशनल कारकर्दगी और इंटेलिजेंस बुनियादों पर जारी इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों को सराहा। एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और बैरूनी सरपरस्तों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी, जबकि ऑपरेशन गज़ब लिल हक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गौर किया गया और सऊदी अरब की तनसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत की गई है। फोरम ने कहा कि ऐसे इक़दामात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। भारत के गुमराह कुन बयानिए, झूठे फ्लैग ऑपरेशंस और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को भी मुस्तरद करते हुए तशवीश का इजहार किया गया। खबर यह है कि ईरान पर हमलों की डेडलाइन के करीब आते ही पाकिस्तान और मिस्र ने जंग बंदी की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान और मिस्र ने जंग बंदी की कोशिशों के लिए मुतअद्दिद टेलीफोन कॉल्स की हैं। बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा लिखा कि पाकिस्तान और मिस्र मिलकर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान के जरिए ईरान से बात कर रहे हैं, जबकि मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने आज अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी बात की है। वाज़ेह रहे कि 5 अप्रैल को मुखालिजात से भरे पैगाम बयान में ट्रंप ने धमकी को दोहराते हुए कहा था कि मंगल का दिन पावर प्लांट का दिन और ब्रिज का दिन होगा। आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन के खात्मे से 11 घंटे पहले ही पूरी ईरानी कौम को ख़त्म करने की धमकी दे दी। यहाँ आपको खबर देंगे, ईरान अमेरिका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। पाकिस्तान की जानिब से जंग रोकने के लिए खैर सगाली और सिफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मकदम का सोशल मीडिया पर बयान, कहा पाकिस्तान की तामीरी कोशिशें फैसला कुन और हसास मोड़ पर पहुँच गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार करें। चीन ने भी पाकिस्तान की फ़ाल सालिसी की कोशिशों की हिमायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम करता है। मुज़ाकराती अमल के फ़रोग़ पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन अमन का मौका ज़ाया नहीं करेंगे। इसराइल के ईरान पर ताज़ा बमबारी में यहूदी इबादत गाहें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। ईरान का भी जवाबी वार, दर्जनों मिसाइल दाग दिए। अमरीका और इसराइल के हमलों से यहूदी इबादत गाहें भी महफूज नहीं। तेहरान में बमबारी से यहूदी इबादत गाह मलबे का ढेर बन गई। मगरबी एशिया में यहूदियों की दूसरी बड़ी आबादी ईरान में है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरान पर फ़ज़ाई हमलों की लहर मुकम्मल कर ली गई है। हमला तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने के लिए किया था। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले, शहादतों की तादाद 15 हो गई। 9 शहरी तेहरान के इलाके शहरियार पर बमबारी में शहीद हुए। तेहरान के इलाके परदेस में मलबे से 6 शोहदा की लाशें मिली हैं। और पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर सिफारती किरदार अदा कर रहा है। ताहम हालिया पेशरफ्त ने अमन कोशिशों को शदीद धचका पहुँचाया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कल रात से कबल बहुत पुरुमीद थे, मगर हालिया ख़तरनाक पेशरफ्त ने हालात को एक बार फिर कशीदा बना दिया है। दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के करीब थे कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान ने सऊदी अरब के शहर जुबैल में ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसने ईरान पर हमले की खुलकर मजम्मत की है। पाकिस्तान को किसी तमगे या क्रेडिट की ख्वाहिश नहीं, बल्कि मकसद सिर्फ खित्ते में अमन का क़याम है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस हवाले से बेपनाह कोशिशें की हैं। उन्होंने खुद भी बतौर वज़ीर ख़ारजा भरपूर किरदार अदा किया। अमेरिका चाहता है ईरान दबाव में आकर हथियार डाल दे, जिसे तेहरान किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। अमेरिका के साथ ऐसी कोई बात नहीं होगी जो ईरान को दबाव में लाएगी। ईरान के एक सीनियर ओहदेदार ने आलमी खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया है कि सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। अमेरिका अब भी अपने मौक़िफ़ में सख्ती से बरकरार रखे हुए है और बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर अमेरिका लचक दिखाए तो ईरान भी मुस्बत रवैया इख्तियार कर सकता है, लेकिन एक तरफा दबाव काबिल कबूल नहीं। अमेरिका आबरे हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाना चाहता है। ईरान इसे महज खोखले वादों के बदले खोलने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना था कि सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो बाबुल मंदब आबनाएं भी बंद कर दी जाएगी। तामीराती सामान की कीमतें बढ़ गईं, अवाम के लिए अपना घर बनाना ख्वाब बन गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद मुल्क भर में तामीराती खाम माल 30% महंगा हो गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार आज़ाद। अब्दुल सत्तार, आगाह कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में किफ़ायत शआरी इक़दामात नाफिज कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। इसके अलावा शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद होंगे, जबकि सरकारी गाड़ियों के फ्यूल कोटे में 50% कमी कर दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी नाफिज कर दी गई है और सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुनाकिद करने की हौसला अफजाई की जाएगी। सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी गाड़ियों को महदूद कर दिया गया। तो सरकारी सतह पर अशाइयों पर पाबंदी, जबकि गैर मुल्की वफूद को इस्तिस्ना हासिल होगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि काम के औकात कार हफ्ते में 4 दिन तक महदूद कर दिए गए हैं। तो दूसरी जानिब ताजिर का कहना है कि शहरी सुबह सवेरे शॉपिंग के लिए नहीं आए, कारोबार हालात पहले ही खराब हैं, ऐसी पाबंदी ना लगाई जाए। लाहौर चैम्बर के सदर ने कहा है कि मार्केट्स जल्द खोलने और रात 8 बजे बंद करने के फैसले की हिमायत करते हैं, जबकि ताजिर बरादरी को हुकूमती फैसले पर अमल दरामद के लिए कायल कर लेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि जिन लोगों के नाम पर एक ही मोटरसाइकिल होगी उन्हें पैसे मिलेंगे। सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 15,000 से ज़ायद लोगों ने अपने कवायफ जमा करवा दिए हैं। सिंध हुकूमत मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2,000 रुपये दे रही है। शर्जील मेमन ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर पड़ा। हुकूमत सिंध ने अवाम के रिलीफ के लिए 35 अरब रुपये का पैकेज दिया। हुकूमत सिंध ने रिलीफ पैकेज में तरजीही किसानों को दी और 25 एकड़ से कम ज़मीन रखने वाले किसानों को फ़ी एकड़ 15 रुपये देना शुरू कर दिए हैं। सिंध वाहिद सूबा है जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स को भी सब्सिडी दे रहा है। मुकेश कुमार चावला ने कहा कि 2800 से ज़ायद मोटरसाइकिल मालिकान को रकम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। जिन मोटरसाइकिल मालिकान के अकाउंट्स सिंध बैंक में थे उनको रकम फौरी मुंतकिल हो गई। सूबाई वजीर मोहम्मद अली मलकानी की ज़ेर सदारत कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी में अहम इजलास हुआ है। माहीगिरी की सनत को सहूलियात फराहम करने के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया, जबकि माहीगिरों और शिकार वाली कश्तियों की रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड लाजमी करार। शनाख्ती कार्ड न रखने वाले माहीगिरों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। मुतालिका हुकाम ने इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि महकमे फिशरीज सिंध की जानिब से अब तक 7,275 माहीगिरों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई है। सूबे भर में शिकार की 8,253 कश्तियां भी रजिस्टर की जा चुकी। गैर कानूनी माहीगिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान अब तक 35,73,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। सूबाई वजीर मोहम्मद अली मलकानी का कहना था कि जेटी मालकान माहीगिरों को तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की पाबंद होंगे। सिर्फ शराइत पूरी करने वाली जेटीज़ को ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। और कराची के ईस्ट जोन के DIG डॉक्टर फ़रूख अली की ज़ेर सदारत हफ्तावार क्राइम मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें ज़िलाई SOPs और इन्वेस्टिगेशन विंग ईस्ट जोन के SSPs शरीक हुए। ईस्ट जोन के तमाम थाना जात में हफ्ता भर होने वाले जराइम की रोकथाम और मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए उठाए गए
عملی اقدامات کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اجلاس میں انسداد منشیات، وہیکلز چوری اور اسنیچنگ، غیر قانونی افغان نیشنل کی گرفتاری اور اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پی ایس ایل کی مناسبت سے نیشنل اسٹیڈیم اور اطراف کے راستوں کی سیکیورٹی کا اثر نو جائزہ اور ڈپلائمنٹ کرنے کیو آر ایف کو الرٹ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ خبر یہ ہے کہ کمشنر کراچی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر حازم بنگواڑ نے تجاوزات مافیا کے خلاف بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ محمد بن قاسم روڈ پر غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی 14 دکانوں کو منہدم کر دیا گیا۔ حازم بنگواڑ کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی کو شکایت ملی تھی کہ غیر قانونی دکانوں کی تعمیر میں متعلقہ ٹاؤن چیئرمین ملوث ہے۔ یہ کے ایم سی کی زمین ہے جس پر کسی بھی ٹاؤن چیئرمین کو قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی کو بھی قبضہ یا غیر قانونی کام نہیں کرنے دیں گے۔ حازم بنگواڑ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات میں صدر ٹاؤن کے افراد ملوث تھے۔